دوستو آج میں آپ کو ہندوستان کے اس ولی کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ سرزمین ہند پہ سب سے پہلے تشریف لائے اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ایسی عظیم ہستی کا آستانہ مبارک ہندوستان میں موجود ہے، لیکن اس عظیم ولی کی عظیم برکت سے آج بھی بہت سے لوگ محروم ہیں جن کو اس ولی کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا مقصد اس عظیم ذات اقدس سے آپ کو روبرو کروانا ہے تاکہ آپ اس عظیم آستانے سے فیض حاصل کر سکیں اور اس ولی کی ذات اقدس کو بھی جان سکیں۔ اس عظیم شخصیت کا نام شان طب تابعی حضور سیدنا حضرت شیخ مدار العالمین سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضور سیدنا قطب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوب نتاب قرطب الوحدت اور حضور سیدنا عطاء رسول نائب النبی فی الہند سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنظری ازمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوب اہدیت المعارف میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے سر انور سے ایک بھی نقاب اڑ جاتا تو خلق اللہ سجدے میں گرنے لگتی، کیونکہ جس طرح آدم علیہ السلام مسجود ملائک تھے اسی طرح حضرت سید شاہ بدیع الدین مسجود خلائق تھے، اور یہ شرف ان کو صرف دست اقدس سرور کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مس کرنے سے ہوا تھا، مگر آپ حجابات میں اپنا چہرہ مستور رکھتے تاکہ شریعت کے باہر قدم نہ نکلے۔ ہندوستان میں اسلام کے پہلے مبلغ اعظم حضور سیدنا مدار العالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہر تاریخ داں ہندوستانی یہ بات جانتا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے دور آخر میں جس مجاہد نے سرزمین ہندوستان پر سب سے پہلے اسلام کا پرچم بلند کیا وہ ذات حضرت محمد بن قاسم علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے ملتان اور سندھ کے علاقوں پر فتح حاصل فرما کر اسلامی حکومت قائم کی تھی، مگر 90 ہجری میں آپ کو بغداد بلا کر سلیمان بن احمد عبداللہ ملک نے آپ کو شہید کر دیا۔ پھر 90 ہجری سے لے کر 282 ہجری تک ہندوستان کے حدود میں کوئی بھی مبلغ اسلام باضابطہ طور پر تبلیغی دستور و نظام لے کر داخل نہیں ہوا، یہاں تک کہ پھر حضور سید مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 282 ہجری میں مبلغ اعظم بن کر تشریف لائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے ہندوستان کے چپے چپے پر پرچم اسلام کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا سید اقبال جونپوری فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار کو دشت رہو اس وقت ہندوستان میں تشریف لائے جب یہاں مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ محمد بن قاسم علوی کی حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ قطب المدار دنیا کے چاروں گوشوں میں گشت کرتا ہے۔ امام یافعی علیہ الرحمہ الحاوی میں اور امام ابن حجر مکی فتوائے حدیثیہ میں رقم فرماتے ہیں کہ وہ قطب المدار جو غوث و قطب کے مقام و مراتب پر ضامع ہے وہ متحمل ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے چاروں گوشوں میں گشت کراتا ہے، جیسے آسمان کے چاروں طرف ستارے چکر لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی غیرت داری اور اس کے احوال کو خاص و عام پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ عالم کے باوجود ناخواندہ لگتا ہے، وہ ذہین ہوتے ہوئے بھی کم فہم معلوم ہوتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو کر بھی دنیا کو اپنے گرفت میں رکھتا ہے، خدا سے قریب تر ہوتے ہوئے بھی کچھ دور سا لگتا ہے، درد مند ہوتے ہوئے بھی تنگ دل جان پڑتا ہے، بے خوف ہونے کے باوجود سہما سہما محسوس ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ میں اس کا مقام ایسا ہے جیسے دائرہ مرکز میں نقطے کا اسی پر عالم کے درستگی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ عبارات مذکورہ سرکار مدار العالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تواریخ شاہد ہے کہ آپ نے آفاق عالم کا گشت فرمایا۔ ایشیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، سیریا، حجاز، عراق، افغانستان، برطین، برطانیہ، المانیہ، چین، روم، یونان، ایران، مصر، فارس، سوڈان، مراکش، جاپان، کولمبو، انڈونیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، گو کہ پوری دنیا کے اکثر مقامات پر آج بھی آپ کے چلے جات، آپ کے خلفاء کے مزارات، آپ کی گدیاں، آپ کے تکیہ اور آپ کے نام کے منسوب دیگر نشانیاں آپ کی عظمتوں کی یادگار ہیں۔ حضور سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار قدس سرہ نے پوری دنیا کا سفر فرمایا تھا،
हुजूर कुतुबुल मदार क़ुद्दस सिरहु का दायरा तबलीग व इरशाद बहुत वसी है। दराज़ी उम्री के सबब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपसे फैज़ याब होने का मौका मैसर आया है। एक एक मजलिस में हज़ार हज़ार लोग दाखिल इस्लाम होकर मुरीद होते थे। इसीलिए आपके मुरीदीन व खुलफा की तादाद का शुमार मुमकिन ही नहीं। सिर्फ हिंदुस्तान ही में आपके चिल्लेगाहों से मुबल्लिग ज़मीन कम अज़ कम 50 लाख बीघे से भी ज़्यादा है, और हिंदुस्तान में ही सिलसिला मदारिया के खानकाहें गद्दियाँ और उनसे मुबल्लिग तकियों की तादाद तकरीबन 3 लाख है, और हिंदुस्तान में ही आपके मशहूर चिल्लेगाहों की तादाद 1400 से ज़्यादा है। जिंदा शामदार कहने की वजह हज़रत वाजिद अली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हज़रत बदिउद्दीन कुतुबुल मदार के कलामात मुल्क हिंदुस्तान में शोहरत अम्मा रखते हैं और आज जनाब के तसर्रुफ़ात हयात व ममात में बराबर हैं। हज़रत शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती रुदौलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि शेख बदिउद्दीन शाहमदार के तसर्रुफ़ात हयात व ममात में बराबर हैं। निगाह वाले बसद एतबार कहते हैं, जो अहले दिल है वो बेअख्तियार कहते हैं, हयात हैं मेरे आका हयात बख्श भी, इसीलिए उन्हें जिंदा शामदार कहते हैं। सरकार मदारुल आलमीन बहुक्म रसूल सन 282 हिजरी में सरजमीन हिंदुस्तान में सबसे पहले खंबात गुजरात में तशरीफ़ लाए। यहाँ अपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। हज़रत ग़ुलाम अली नक्शबंदी क़ुद्दस सिरहु फरमाते हैं कि हज़रत जिंदा शामदार ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू, ऐसा कर दे कि मुझे भूख और प्यास न लगे और मेरा लिबास मैला और पुराना ना हो। यही खंबात गुजरात में ही सरकार मदार पाक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से आपको 9 लुक़्मे खिलाए और कहा कि ऐ बदिउद्दीन, अब तुमको खाने पीने की ज़रूरत नहीं होगी, और उसको खाकर आप पर तमाम तबकाती अर्जी व समावी आप पर रोशन हो गए, और जन्नती जुब्बा पहनकर ये बिशारत दी कि अब से कभी मैला पुराना ना होगा और इसको धोने और साफ करने की हाजत नहीं होगी। इसके बाद 282 हिजरी से लेकर 838 हिजरी यानी विसाल तक न कुछ खाया न पिया और सोने की भी हाजत नहीं हुई, और आप मकाम समतियत पर फाइज हो गए। 557 साल तक आपने न कुछ खाया न पिया, न सोए, न ही लिबास इख्तियार किया। पूरी उम्र आपने इस्लाम की तबलीग फरमाई और सारी उम्र का रोज़ा रखा। फिर नूर मुजस्सम ताजदार रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चेहरे अनवर पे अपने दस्त मुनव्वर फेर दिया था, जिसके सबब आपका चेहरा मुबारक इतना रोशन हो गया कि जो भी देख लेता उस नूर की ताब न लाकर के सजदा रेज हो जाता था। इसी के सबब आपको अपने चेहरे पर 7 नकाब रखने पड़ते थे। सदा बरस न खाकर भी जिंदा रहे मदार, ये है दलील देखिए जिंदा शाहमदार की। शाहजहां बादशाह के बेटे और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के भाई हज़रत दारा शिको कादरी फरमाते हैं कि आप मकाम समदियत पर हैं, जो सलीकों को मकाम, और अल्लाह ने आपको ऐसा हुस्न जमाल अता किया कि जो आपको देख लेता वो बेखुदी के आलम में सजदा रेज हो जाता था। इसीलिए आप हमेशा नकाब डाले रहते थे। मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कबीर अबुल कलाम फरमाते हैं कि हज़रत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार बज़ाहिर कुछ नहीं खाते, और ना ही उनका कपड़ा कभी मैला हुआ और ना ही उन पर कभी मक्खी बैठती थी। उनके चेहरे पर हमेशा नकाब पड़ा रहता था। निहायत ही हसीन व जमील थे। चारों आसमानी किताबों के हाफिज़ व आलिम थे और तमाम दुनिया का सफ़र उन्होंने किया था, और वो अपने वक्त के कुतुबुल मदार थे। हज़रत सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार जब बगदाद तशरीफ़ फरमा हुई तो हज़रत कुतुबुल मदार और हज़रत गौस पाक करीब शोबत हुए और दरियाए मोहब्बत हक़ में गोता जन हुए। उस वक्त हज़रत गौस आज़म की कैफियत जलाली थी। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने तहरीर फरमाया ही कि हज़रत कुतुबुल मदार की तवज्जो से हज़रत गौस पाक का जलाल जमाल में तब्दील हो गया। ज़ियाउद्दीन अहमद अलवी मुजद्दिद तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत गौस पाक की हमशीरा के यहाँ औलाद नहीं होती थी। उन्होंने आपसे दुआ की इस्तदा की। हज़रत शाहमदार की दुआ के बरकत से उनको औलाद अता हुई। साहिब खुमखाना तसव्वुफ़ रकम फरमाते हैं कि बीबी नसीबा की कोई औलाद नहीं थी। जब कुतुबुल मदार बगदाद तशरीफ़ ले गई, बीबी नसीबा आपकी दुआ की तालिब हुई। हज़रत कुतुबुल मदार की दुआ से 2 लड़के पैदा हुए। मुल्ला कामिल मजीद तहरीर फरमाते हैं कि कुतुबुल मदार गौस पाक की मुलाकात के बाद हज को चले गए और सफ़र हज के वापसी में दूसरी बार तशरीफ़ लाए
और बीबी नसीबा की ने गौसे पाक की वसीयत के मुताबिक आपने दोनों फर्जंदों को जो हज़रत कुतुबुल मदार के दुआ से पैदा हुए थे बारगाह मदारियत में पेश किया और हज़रत शाह मदार ने उनको जान और दिल से कबूल किया और उन्हें लेकर इस्तांबुल तुर्की रवाना हो गए। हज़रत गौसे पाक के भांजे हज़रत जमालुद्दीन का विसाल बचपन में हो गया था तो हज़रत कुतुबुल मदार ने उनको जिंदा फरमाया, ये कहते हुए कि उठो जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, और आप जिंदा हो गए। आप सरकार मदारुल आलमीन के बहुत चहीते मुरीद और खलीफा हुए हैं। आप ही से सिलसिला मदारिया में मलंगों का सिलसिला जारी हुआ है। सरकार जमालुद्दीन जाने मन जन्नती के सर पे हुजूर मदार पाक ने अपना दस्ते मुबारक रख दिया था तो आपने पीर की मोहब्बत में फिर कभी अपने बालों को अपने सर से जुदा न किया। आपका मज़ार शरीफ हिलसा बिहार में है। आपको मलंग आजम भी कहा जाता है। आपकी उम्र शरीफ 400 साल की हुई है। शबाब चिश्ती अकबराबादी लिखते हैं कि चिल्ला हज़रत शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर की मशरकी पहाड़ी की चोटी पर है जो कि 700 फीट बुलंद है। इस पर सैयद बदियुद्दीन उर्फ शाह मदार मकनपुरी जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के ज़माने में आए थे अरसे तक इबादत इलाही में मशगूल रहे थे। इसके अलावा हज़रत मौलाना हकीम फरीद अहमद मुजद्दिदी नक्शबंदी ने अपनी किताब मदार आज़म में हज़रत शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती रदौलवी ने अपनी किताब मियारतुल असरार में और फसूल मासूदिया में हज़रत शेख वजीहुद्दीन अशरफ ने बहर ज़खियार में इसके अलावा कई किताबों में तहरीर है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने हज़रत मदारुल आलमीन से कोकिला पहाड़ी पर मुलाकात फरमाई। इसी पहाड़ी पर हज़रत कुतुबुल मदार ने क़याम किया। आज मदार टीकरी के नाम से मौसूख है। इसके अलावा अजमेर शरीफ में मदार स्टेशन, मदार गेट काबिल ज़िक्र है और मदार शाह मस्जिद भी है। हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर शिवनारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के वलियों में कुछ हजरात वो हैं जिन्हें मसाई के तरीक़त और मकाम हकीकत के अकाबिर बुजुर्ग लोग वैसी कहते हैं कि इन हजरात को ज़ाहिर किसी पीर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हज़रत रिसालत पनाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुज़्र इनायत में वज़ाहत खुद उनकी तरबियत व परवरिश फरमाते हैं। इसमें किसी भी गैर का कोई वास्ता वसीला नहीं होता। जैसा कि हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई। यह मकाम उवैसियत बहुत ही अजीम मकाम है और बहुत ही बुलंद बाला रुतबा है। अगर किसी के यहाँ तक की रसाई होती है इस दौलत उज़्मा पर मैसर होती है बा मौज़ब आयत करीमा। ये तो अल्लाह का मखसूस फजल है कि वो जिसे चाहता है अता कर देता है और अल्लाह ताला अजीम फजल वाला है। आप मजीद फरमाते हैं कि हज़रत शेख बदियुद्दीन मुलक्कब व शाह मदार क़ुद्दस सिरहु भी वैसी थे और आप बहुत बुलंद मशरब के बुजुर्ग हैं। बाज़ नवादिर उलूम जैसे हीमिया, सीमिया, कीमिया और रीमिया उनसे मुशाहिदे में आए हैं जो इस गिरोह औलिया में नादिर हैं कि किसी को हासिल नहीं होता। हुजूर मदारुल आलमीन की ताबई होने की सनद। हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार आप हिंदी साहबी रसूल अबुल रज़ा बाबा हाजिरतन हिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिदमत में अरसे दराज तक रहे। हुजूर हाजी साहब के मज़ार के पास आज भी चिल्ला मदारुल आलमीन ज़ियारत ख़ास व आम है। हिंदी साहबी रसूल अबुल रज़ा बाबा हाजिरतन हिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबियत को वक्त के जलीलुल क़द्र उलमा व मसाइक ने तस्लीम किया है। अल-मुख्तसर हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने भी और हज़रत अल्लामा इब्ने हज़र मक्की ने अपनी किताब उल असाबा फ़ी मारितुस सहाबा में और काज़िया तहर मुबारकपुरी ने रियाजुल हिंद में हिंदी साहबी रसूल अबुल रज़ा बाबा हाजिरतन हिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तफसीली हालात लिखे हैं। आपने 632 साल की उम्र शरीफ पाई। 675 हिजरी में खुद आपके साहिबजादे हज़रत महमूद बिन हिंदी साहबी रसूल अबुल रज़ा हाजिरतन हिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तफसीली हालात और उनका मोज़िज़ाए शम्सुल कमर व मुशाहिदा करना और हिंदुस्तान के बलाद अरब को जाना और मुशर्रफ इस्लाम होना बयान किया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दराज़ी उम्र की दुआ दी थी, इसीलिए आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 700 साल के करीब हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी कंगी मुबारक भी दी। तारीख़ हिंदी और तारीख़ शकरिया जौनपुर में हज़रत ईसा जौनपुरी ने और मदार आज़म में
हज़रत हकीम फरीद अहमद नक्शबंदी ने और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपने तज़किरे में हिंदी साहबी रसूल अबुल रज़ा बाबा हाजी रतन रदियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत सैयदना मदारुल आलमीन रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात और आपके खिदमत में अरसा दराज रहने और वहाँ चिल्ला कशी करने के ज़िक्र को इरशाद फरमाया है। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर के भाई और शाहजहां बादशाह के बेटे हज़रत दारा शिको कादरी तहरीर फरमाते हैं कि आपका लक़ब शामदार है। आप शेख मोहम्मद तैफूर शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद हैं। आपका सिलसिला आपकी उम्र के तवालात की वजह से या किसी और वजह से 5 या 6 वास्तों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचता है। आपके अजीब और गरीब अहवाल व अवतार हैं। हज़रत शामदार का दर्जा इतना बुलंद बाला है कि इहाता तहरीर में आ नहीं सकता। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के मुरीद और खलीफाए हज़रत मीर ज़फ़र मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुतुब आलम हर ज़माने बास में एक होता है। अहले दुनिया व आखिरत में तमाम मौजूदात यानी आलम सिफली व अलवी आलमीन के बावजूद कुतुब आलम के वजूद से कायम है। कुतुब आलम को बेवास्ता हक़ ताला से फैज़ पहुँचता है और कुतुब आलम को कुतुबुल मदार भी कहते हैं। हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी फ़ारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ख़िज़्र पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे और इलियास अलैहिस्सलाम को कुतुबुल मदार का मुइन बनाया। जो अल्लाह ताला का ऐसा वली है जिसको अल्लाह ताला ने आलम का मदार बनाया और आलम की बका उसके वजूद व इजाफे की बरकत के सबब कायम की। हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी महरारवी को दस्सिरव फरमाते हैं कि हर ज़माने में एक गौस होता है कि उसके ज़माने के तमाम औलिया कराम का सरदार व सरताज होता है। उसके ज़माने का कोई वली उसका मर्तबा नहीं पा सकता। उसको कुतुबुल मदार भी कहते हैं, इसीलिए कि तमाम आलम के कारोबार का उसी पे दारो मदार होता है। तमाम नज़्म व नस्क उसी के हाथों पर नाफिज होता है और निज़ाब पाता है। हज़रत ज़िया अली अशरफी चिश्ती तहरीर फरमाते हैं कि सैयद बदियुद्दीन नाम था, कुनियत अबू तुराब थी। कुतुबुल मदार बुलंद व बाला मकाम बारी ताला ने वरीयत फरमाया था और मदारुल आलमीन का खिताब बारगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अता हुआ था। दोस्तों, ये थे हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के कुछ अजीम खुसूसियात, जिनको बयान करते हुए मुझे बहुत ही फ़ख्र हो रहा है और आप भी इन खुसूसियात को अगर यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर सुना होगा। ऐसी अजीम हस्ती का आस्ताना मुबारक हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर के मकनपुर में वाक़ है। आज भी आपके आस्ताने पर आपके चाहने वालों का हुजूम रहता है। देश और दुनिया के तमाम ज़ायरीन आपके आस्ताने पर तशरीफ़ लाकर फैज़ हासिल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह के अजीम हस्ती से तमाम लोग रूबरू और वाबस्ता हो सकें और आपके ज़ात अक़दस से फैज़ हासिल कर सकें।